Hello everyone. Today I am starting class 9th Icse topic Cell, the fundamental of life. It is a very basic concept in your biology, so let's start without wasting time. It is the structure and fundamental unit of life. What do you mean by that? Means all the living organisms are made up of cells. And remember one thing, our body is also made up of multicellular organisms. Okay, so that's why it is called structure and fundamental unit of life. It is termed as structure unit of life because it provides structure to our body. ये हम इसे सेल को स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं क्योंकि जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर एक शेप प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर डन बाय सेल्स. जो हमारी हम इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं सेल को लाइफ की बिकॉज जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के वो सेल परफॉर्म करता है. ओके, it was discovered by Robert Hooke in 1665. Robert Brown in 1831 discovered the nucleus of the cell. जो सेल का न्यूक्लियस है रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में डिस्कवर किया था. दे आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Unicellular organisms are represented by a single cell. All activities performed by a single cell means one cell. Unicellular means one cell. There is no division of labor as single cell perform all life activities. Means there is no need of another cell. Only one cell will perform all life activities. Okay. Multicellular organisms consist of large numbers of cells, means many cells. A single cell can perform one or few activities, means one cell can perform one means one activities also or few activities also. So let's say cells are specified to perform different tasks. मीन्स सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के उसे हम उसे उस पर उस जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसको डिफरेंट टास्क दिया जाता है स्पेसिफाइड करने के लिए. ठीक है. सो द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज़ लॉन्ग. Examples of unicellular organisms: bacteria. Examples of multicellular organisms: human being. Differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are large in number. Size of cell is generally small, and size of cell is generally large. Nucleus is absent and nucleus is present in eukaryotic cells. It contains single chromosome in prokaryotic cells. It contains more than one chromosome in eukaryotic cells. Prokaryotic cells में nucleolus is absent and eukaryotic cells में nucleolus is present. Now starting with a new topic, that is structure of a cell. First point is plasma membrane or cell membrane. It is the outermost covering of the cell that separates the cell content of the cell from its external environment. Means it is ये बाहर की कवरिंग है जो सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. Now it allows the entry and exit of some materials in and out of the cell. मीन्स ये अलाउ करता है अंदर आने में और बाहर जाने में कुछ मटेरियल्स को. ओके, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन बिकॉज सिलेक्ट होके जाता है ना अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, तो इसे हम सिलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल. इन प्लांट सेल द एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एडिशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हैव रिजिड आउटर कवरिंग. एक और रिजिड आउटर कवरिंग होती है उसकी, उसे हम सेल वॉल कहते हैं. इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. When a living plant cell loses water through osmosis. Now what is osmosis? It is a
movement of water molecules from its region of higher concentration to its region of lower concentration through a semi-permeable membrane. It is called osmosis. Okay, so there is a concentration of the cell away from the cell wall. मीन्स इसमें कहने का मतलब ये है कि जो पानी का कंसनट्रेशन है वहाँ पर कम हो जाता है सेल के अंदर टू कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें सेल वॉल से. ओके, सो दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. व्हाट आर इट्स फंक्शंस? इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल्स. ये अंदर से बाहर आने में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. नाउ न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट. Nucleus is the main part of the cell. The cell has double layer membrane called nuclear membrane. न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, वो उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. इट हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव पोर्स विच अलाउस द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. मैंने बताया है आपको, ये हेल्प करता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर भेजने में न्यूक्लियस के मटेरियल्स को. इट कंटेन्स क्रोमोसोम विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. ये ये क्रोमोसोम को रखते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन दे सके इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. ये आप आगे क्लास में पढ़ेंगे. फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इन ऑफ फॉर्म ऑफ DNA, deoxyribonucleic nucleic acid. Chromosomes are composed of DNA and proteins. जो DNA है, क्रोमोसोम है, वो प्रोटीन और DNA से मिलकर बना होता है. DNA एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है. इसके फंक्शंस क्या हैं? इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की. इट कंट्रोल्स जीन इन द फॉर्म ऑफ DNA. ये जीन्स को भी कंट्रोल करता है DNA की फॉर्म में. एंड इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल. सेल साइकिल को ये रेगुलेट करता है. नाउ न्यू टॉपिक, दैट इज़ साइटोप्लाज्म. इट इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये फ्लूइड कंटेंट है एक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा. इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर विच फिल्स. ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो फिल करता है स्पेस बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज. सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में जो स्पेस होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर का, उसे ये फिल करता है. इट एक्ट्स एज अ स्टार्च ऑफ विजुअल केमिकल सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन्स. नाउ व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज? लेट्स डिस्कस अबाउट इट. गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस, इसका फंक्शंस क्या है? गोल्गी अपरेटस का फंक्शन है वो सेल की मतलब उसकी सिक्योरिटी रखना. ओके, इट ऑल्सो अलाउज also involved in the synthesis of cell membrane, cell wall and cellulose. Its functions include the storage, modification and packaging or produced in vehicles. Now lysosomes. Lysosomes contains powerful digestive enzymes. During breakdown of cell structure, जब सेल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करता है, when the cell gets burst, lysosomes eat their enzymes their own. जो लेजोसोम्स होते हैं वो अपने एंजाइम अपने आप उनके सेल्स उनके एंजाइम्स को खा जाते हैं जब वो बर्स्ट करता है ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर. देयरफॉर लेजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. उसे हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं सेल का. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. हम इसे पावर हाउस भी कहते हैं सेल का क्योंकि ये ATP की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करता है. दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. इनके पास अपना खुद का DNA होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं. दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ये सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट, इनके पास सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होते हैं. ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. What is a plant cell and what is a animal cell? Cell wall is present in plant cell. Cell wall is absent in animal cell. Shape of plant cell is generally rectangular. Shape of animal cell is irregular. जो plants का generally shape होती है वो rectangle की shape में होती है और जो animals की shape होती है वो generally irregular होती है. Means it can be oval, it can be circle, it can be anything. Okay. Pesticides are present in plant cell. Pesticides are absent in animal cell.
Golgi bodies are present in the form of means and Golgi bodies are present in animal cell. Centrosomes are and centrioles are not present in plant cell. Centrosomes and centrioles are present in animal cell. Now, what is a chromosome and gene? Okay, what is a chromosome? Nucleus has thread-like structure are called chromosomes. न्यूक्लियस हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, मतलब न्यूक्लियस के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है उसे हम जीन कहते हैं. ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.